Hello students, today our topic is networking, that is unit 1, and in this lecture we are going to discuss some concept related to networking. So let's start. First of all, mobile technologies. So there is a term used in mobile technologies that is third generation, also known as 3G. So what is the meaning of 3G? Basically, 3G combines aspect of 2G network with new technologies and protocols to deliver a significant faster data rate. So as far as generations are concerned, basically generation are categorized into five basic category: 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G. 5G is the upcoming technology, and 1G is the oldest generation. Okay. As far as syllabus is concerned, there are only 3G and 4G are in your syllabus. So here I just give a brief description about 3G and 4G. So when we say that 3G, basically it is a upgrade version of 2G network where we can transfer data rate, where we can transfer our data much more faster as compared to 2G. Okay, that is the basic difference between 2G and 3G. Next, by using packet switching, the original technology was improved to allow speed up to 14 megabytes per second. So when we talk about the speed of the third generation 3G in mobile communication, its speed is around 14 megabytes per second. Okay, and the concept which is used is packet switching. So what is packet is basically when um, data is of much more size as compared to the normal data, then data is divided into different parts, that is also called as a packet. So data is delivered in the forms of the packet, one after another. Okay, and at the receiving end, when all packets are received, then then these packets again recombine and produce the original data. So the concept that is used is packet switching, and the most important advantage of packet switching is that it is not necessary that all packets follow same route on network. Okay, so the concept which is used in third generation is packet switching, and the data transfer rate is 14 megabytes per second. It is very important. So if this question is asked in your examination, so give uh, to the point, give answer to the point. So the first point is it is a upgrade version of 2G. Second is it uses packets concept of packet switching. Third point is speed is around 14 megabytes per second as far as 3G is concerned. Next is range and bandwidth. So it operates at a range of 2100 megahertz and has a bandwidth of 20 megahertz. Okay, so some of the main features of the 3Gs are given, such as speed is 2 megabytes per second. Normally its speed is 2 megabytes per second, and maximum speed is 14 megabytes per second. That is the maximum speed. That is the minimum speed. Normal speed, sorry. This is the normal speed that is used. And next is increased bandwidth and data transfer rate. It sends and receives large email messages. So it is capable to send and receive large email messages. And large capacities and broadband capabilities is also there. These are the some basic points regarding to third generation 3G. Okay. Next is fourth generation 4G mobile technology. 4G mobile technology. So the main difference between 3G and 4G is the data rate. So when we say that, we can say that as far as data rate is concerned, 4G has higher data rate as compared to 3G. And the key technologies that have made 4G possible are MIMO, that are the key technology that are used in 4G, and OFDM.
What is the meaning of MIMO? MIMO is multiple input, multiple output, and OFDM refers for orthogonal frequency division multiplexing. So the two main key technologies that are used in 4G are these MIMO and OFDM. So if this question is asked in examination, you can write the first point as a 4G has a greater data rate as compared to 3G, and third, as far as technology is concerned, 4G possibly there are two basic technologies that are used in 4G, that is MIMO, multiple input and multiple output, and OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Next is the most important 4G standards are WiMAX and LTE. These are the most important or 4G standards, WiMAX and LTE, that are used in 4G technologies. And what is the meaning of LTE? Basically, while 4G LTE is a major improvement over the 3G speed, it is a technically not 4G. So when we say that 4G and 4G LTE, actually both are not same. First of all, let us see what is the meaning of LTE. Okay, so what is the difference between 4G and LTE? LTE refers for long-term evolution. That is the full form of LTE. So basically 4G and LTE, 4G is not LTE, both are interrelated terms, but both have basically there is a little bit difference between 4G and LTE. When you talk about the LTE basically long-term evolution. Okay, तो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, even after it was widely available, many networks were not up to the required speed of 4G. 4G LTE is a fourth generation long-term evolution capable of delivering a very fast and secure internet connection. Basically 4G is a predetermined standard for mobile network connection, and 4G LTE is the term given to the path which has to be followed to achieve those predefined standard. अगर हम 4G और 4G LTE की बात करते हैं तो बेसिक बात ये है दोनों में कि 4G बेसिकली प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स हैं जो मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है. ये पहले से डिटरमाइंड है कि इस तरह का कनेक्शन होना चाहिए मोबाइल में, लेकिन उसको अचीव करने के लिए वो किस तरीके से अचीव होगा, ठीक है, उसमें कुछ तो उसको हम 4G LTE के थ्रू करते हैं. इसलिए पॉइंट लिखा भी है 4G इज द टर्म गिवन टू द पाथ विच हैज टू बी फॉलोड टू अचीव दोज प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड. तो 4G LTE वो पाथ है जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड जो 4G में पहले से ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा वो आपका 4G LTE के थ्रू होता है आपका. तो ये एक्चुअली ये जो टर्म है 4G LTE, ये एक पाथ है और ये बताता है कि जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है 4G के, उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा. ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 4G एंड LTE. तो इसे लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन बोलते हैं आपका. तो 4G आपका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है और LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है. ये वो पाथ है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से ये 4G के प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा. ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 4G एंड LTE. हर जगह आपको 4G LTE लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है. तो उसमें आपको फिर ये इसके बारे में लिखना है. दिस इज द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज 4G LTE इज कंसर्न. नेक्स्ट, अब इसके 4G LTE की कुछ स्पेशलिटी देखते हैं, क्या इसमें अलग है औरों से या क्या फीचर्स हैं इसमें. सपोर्ट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया वॉइस वीडियो. तो ये इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, वॉइस को वीडियो को सपोर्ट करता है. वीडियो कॉल हो सकती है इसके आसानी से, ठीक है. मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इजीली रन हो सकती हैं क्योंकि स्पीड एज कम्पेयर टू 3G इज़ मच मोर फास्टर. ओके, अब स्पीड कितनी है इसकी. स्पीड अगर आप देखेंगे तो 3G में थी 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड मैक्सिमम आपका जो, और इसमें है आपके 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड. तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मच मोर फास्टर एज कम्पेयर टू 3G. एंड तो हाई स्पीड है, हाई कैपेसिटी है, लो कॉस्ट पर बिट है आपकी. नेक्स्ट है ग्लोबल एंड स्केलेबल मोबाइल नेटवर्क. ग्लोबल एंड स्केलेबल मोबाइल नेटवर्क को सपोर्ट करता है. एडहॉक एंड मल्टी होप नेटवर्क्स को भी सपोर्ट करता है. दीज आर द मेन की फीचर्स ऑफ 4G. तो ये 3G 4G के बारे में था बेसिकली क्वेश्चन. एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 3G और 4G में क्या डिफरेंस है. आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जनरेशन के बारे में बताना है, ठीक है, कि दीज आर द जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज. फिर उसकी डेटा स्पीड के बारे में बताना है. थर्ड, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है. और फोर्थ, जो भी की फीचर्स हैं आपको
इसमें से जो भी 4th या 5th पॉइंट में वो की फीचर्स आप लिख सकते हैं। टेबल ऑफ फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आने की पूरी उम्मीद है इसकी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट सर्च इंजन। और आप गूगल को तो सभी आप जानते ही होंगे। क्या काम करता है गूगल? सर्च करता है। google.co.in पर जाइए आप, google.com पर, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होंगी वो सभी ओपन हो जाएंगी। तो ये क्या है? बेसिकली ये सर्च इंजन है। लेकिन सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन बेसिकली एक प्रोग्राम होता है आपका। सर्च इंजन बेसिकली एक प्रोग्राम दैट सर्चेस अ डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कीवर्ड हम देंगे उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी सर्च हो जाते हैं। वेबसाइट सर्च हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, आप जो सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। और सभी सर्च करना चाहें तो ऑल का ऑप्शन भी आता है, वो सभी भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। ओके, तो सर्च इज बेसिकली एक प्रोग्राम दैट सर्चेस डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड। तो जो भी आप स्पेसिफाइड कीवर्ड टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी सर्च होगी ये प्रोग्राम आपको अवेलेबल कराएगा। एंड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर द कीवर्ड्स वर फाउंड। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई आपकी। ओके, विदाउट सर्च इंजन यू वुड नेवर बी एबल टू फाइंड एनीथिंग ऑन द वेब। तो देखिए, सभी वेबसाइट्स का यूआरएल याद करना काफ़ी टफ टास्क है। और जनरली हम करते यही है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देखना है, इमेज देखनी है, तो हम सर्च इंजन के थ्रू सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी इमेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी अवेलेबल होते हैं। तो सर्च इंजन का जैसे एग्जाम्पल है आपका google.com, तो मैंने बताया ही आपको। इसके अलावा ask.com पर भी आप कर सकते हैं। याहू भी एक सर्च इंजन है। तो ये सभी आपके सर्च इंजन है। सर्च इंजन बेसिकली क्या है? दैट इज़ ए प्रोग्राम। क्या काम करता है? सर्च डॉक्यूमेंट। कब करेगा सर्च? फॉर ए स्पेसिफाइड कीवर्ड्स व्हेन यू टाइप। जब एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाइड कीवर्ड होगा जो भी आप टाइप करोगे उसके लिए सर्च करेगा। एंड देन आफ्टर क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न से लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर द कीवर्ड्स वर फाउंड। तो जहाँ जहाँ वो कीवर्ड मिलेगा उससे रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उन सभी को वो सर्च करके आपको शो कर देगा उसकी लिस्ट। So that is the purpose of the search engine. So its simple definition है a program that searches document for specified keywords and returns a list of the document where the keywords were found. Okay, तो अभी सर्च इंजन के साथ एक वर्ड और यूज होता है, स्पाइडर। अभी इस स्लाइड को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए पहले एक और कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो हाउ सर्च इंजन वर्क्स, अभी क्वेश्चन ये भी आता है। तो बेसिकली देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वेब क्राउलर, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर और सर्च एल्गोरिथम। तो वेब क्राउलर क्या? नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेब क्राउलर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पाइडर। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पाइडर क्या होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्च इंजन दैट ब्राउजेज द इंटरनेट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो इंटरनेट को सिस्टमैटिक मैनर में ब्राउज करता है, ठीक है, इसलिए इसे स्पाइडर बोलते हैं, वेब क्राउलर बोलते हैं। तो इंटरनेट में सिस्टमैटिक मैनर में आपको ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर आपका वेब क्राउलर है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्च इंजन, मेन पार्ट ऑफ द सर्च इंजन। नेक्स्ट एक इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, ये इंडेक्स प्रिपेयर करेगा। देखिए वेब क्राउलर ने सर्च कर लिया, ठीक है, और अब फिर एक इंडेक्स प्रिपेयर होना चाहिए। तो इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए एक इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट रिसीव द लिस्ट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट एंड एड्रेसेस कलेक्टेड बाय वेब क्राउलर। तो वेब क्राउलर ने जो भी आपकी एड्रेसेस कलेक्ट किए हैं वेब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी कुछ आपने सर्च किया उससे रिलेटेड, जो भी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च है उसके लिए, तो ये फिर उसके लिए एक इंडेक्स प्रिपेयर करेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। लास्ट आता है सर्च एल्गोरिथम। तो ये एक सर्च एल्गोरिथम जैसे नाम ही बता रहा है इसका, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्चिंग। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्चिंग है आपकी, तो इसके थ्रू आपका सर्चिंग इम्प्लीमेंट होती है आपकी। तो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स, वेब क्लाउड, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, सर्च एल्गोरिथम। तो वेब क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो ब्राउज करता है इंटरनेट पर सिस्टमेटिक मैनर में। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर उसका इंडेक्स प्रिपेयर करता है, और सर्च एल्गोरिथम एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्चिंग का कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्चिंग है आपकी। तो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ सर्च इंजन। ओके, अब जरा इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं सर्च इंजन के बारे में। ओके, टिपिकली सर्च इंजन वर्क्स बाय सेंडिंग आउट द स्पाइडर टू फेच एज मेनी एज डॉक्यूमेंट एज पॉसिबल। स्पाइडर की डेफिनेशन दे रखी है, स्पाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब क्राउलर। सो
Spider is a program that automatically fetches web pages. Spider are used to feed pages to search engine. It is called as Spider because it crawls over the web. And another term for this program is web crawler. तो web crawler कहिए, spider कहिए, both are the same thing. दोनों में से किसी भी एक नेम से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है. Because most web pages contain link to other pages, spider can start almost anywhere. As soon as it seems a link to another page, it goes off and fetches it. इसका काम बेसिकली सर्च करने का होता है, और क्योंकि वेब पेज एक दूसरे से लिंक से कनेक्टेड होते हैं, तो स्पाइडर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेब पेज किससे कनेक्टेड है, कहीं से भी सर्च करना स्टार्ट कर सकता है. जहाँ इसको कीवर्ड मिलेगा वहाँ से ये उस कीवर्ड से रिलेटेड पर्टिकुलर वेब पेज को ये आपका फाइंड आउट करेगा आपका. तो दैट इज़ द रोल ऑफ द स्पाइडर और वेब क्राउलर. तो अभी इसका एग्जाम्पल क्या है सर्च इंजन के? सर्च इंजन के एग्जाम्पल आप जानते हैं, एक तो मैंने बताया गूगल, दूसरा आज.com, तीसरा याहू. तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको. ओके, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, यूनिट 1, दैट इज ईमेल. तो अभी आप सभी फैमिलियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से. ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही शॉर्ट फॉर्म में ईमेल बोला जाता है. और हम अपनी जनरल लाइफ में और आजकल हम इसको तो यूज़ करते ही हैं ईमेल, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स हैं. एग्जाम में लिखने को आएगा तो कैसे लिखना है आपको. तो सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए. तो एलिमेंट्स ऑफ द ईमेल अकाउंट्स आर गिवन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनबॉक्स. तो जब आप ईमेल करते हैं, ईमेल क्या है आपका? ईमेल एक्चुअली एक आपका एड्रेस है इंटरनेट पर, जहाँ से आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. जैसे आपका एक घर का एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस होता है, तो वहाँ पर आपको कोई लेटर मिल सकता है, रिसीव कर सकते हैं. उसी तरीके से इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, जो सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं होगा. वहाँ से आप किसी और को, सेकंड अनदर पर्सन को, जो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में होगा, उसको आप मेल कर सकते हैं और उससे मेल रिसीव भी कर सकते हैं, अगर आपको उसकी ईमेल आईडी पता है. तो ईमेल आईडी बेसिकली एक यूनिक होती है, और डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराती हैं. कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं आपकी. जैसे आपकी जीमेल है, ठीक है, जैसे आपकी याहू है, redifmail.com है, indiatimes.com है, zebac.com है, outlook.com है. तो इन पर आप इन पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, उसके थ्रू आप ईमेल कर सकते हैं. तो जब आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा, तो ईमेल अकाउंट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो जो या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में ये स्लाइड है. पहला होता है इनबॉक्स. तो जो भी मैसेजेस आते हैं आपके, वट एवर द इनकमिंग मैसेज, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इनबॉक्स. तो वो मैसेज आपके इनबॉक्स का पार्ट बनते हैं. तो जो भी आपके पास मैसेज आएगा वो इनबॉक्स में आएगा आपका, ठीक है. नेक्स्ट इज आउटबॉक्स. दैट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द इनबॉक्स, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इनबॉक्स का. सेकंड इज आउटबॉक्स. तो अभी आपको अगर किसी को मैसेज सेंड करना है, दैट मैसेज इज द पार्ट ऑफ द आउटबॉक्स. तो हमेशा आपके आउटबॉक्स में अवेलेबल रहेगा कि आपने किसको मैसेज. द मैसेज इज स्टोर्ड इन द आउटबॉक्स until it is successfully sent to the recipient. Okay, that is a part of the sent mail. तो जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वो सेंट मेल में शो करेगा, लेकिन उससे पहले ही आउटबॉक्स का पार्ट होगा. तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. मैसेज स्टोर्ड इन द आउटबॉक्स अंटिल इट इज सक्सेसफुली सेंट टू द रिसिपेंट. तो जब तक ये आपने जिसको भेजा है, जब तक वो पहुंच नहीं जाता, तब तो आउटबॉक्स का पार्ट होगा. एक बार पहुंच जाने के बाद वो सेंट मेल में शो करेगा आपका, ठीक है. तो क्लियर हो गया आपको. इनबॉक्स, इनकमिंग मैसेजेस होंगे. आउटबॉक्स में मैसेज आएगा और स्टोर रहेगा जब तक कि वो सक्सेसफुली सेंड नहीं हो जाता. एंड देन आपका सक्सेसफुली सेंड, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट मेल. तो जितने भी आपने मेल सेंड किए हैं वो सब आपके सेंट मेल का पार्ट होंगे. नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट. तो ड्राफ्ट में है, इट कंटेन्स ड्राफ्ट मैसेजेस. ये ड्राफ्ट मैसेज को कंटेन करता है विच आर रेडी टू बी सेंड. तो जो हम मेल भेजना चाह रहे हैं, जो हमारे मेल भेजने को प्रिपेयर है, ठीक है, उसको हम ड्राफ्ट में, वो बेसिकली ड्राफ्ट के अंदर रहते हैं आपके. नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट इज ट्रैश. तो इट कंटेन डिलीटेड मैसेजेस. तो जो मैसेज आप डिलीट करते हैं तो ट्रैश का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट इज स्पैम. इट कंटेन जंक ईमेल. तो आपके पास कभी कभी मेल आते हैं कंपनी के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सभी मेल आपके स्पैम का पार्ट होते हैं. तो ये एलिमेंट्स होते हैं ईमेल अकाउंट्स के. इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट मेल, ड्राफ्ट, ट्रैश एंड स्पैम. तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ ईमेल अकाउंट. आगे देखते हैं. अब ये देखिए, आपको अगर मेल करना है तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा आपको. यहाँ
आपको जिसको मेल करना है टू, तो हाँ आप उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के लिए ईमेल आईडी नाम होगा, जैसे आपका अरिहंत है तो आप लिखेंगे अरिहंत @ का सिंबल, और जो ईमेल आईडी जो अकाउंट जिस पर आपने बनाया है जीमेल पर है तो आपने gmail.com लिखेंगे। इस तरीके से कंप्लीट ईमेल आईडी है, एड्रेस है। और एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो आप कॉमा लगा के सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में सिर्फ एक पर्सन को भेज सकते हैं, आप कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ वो सभी लोगों को एड्रेस भेजे जाएंगे, या जिसको आपको मैसेज करना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप किया जाएगा टू में। नेक्स्ट सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, सीसी। ठीक है, तो आप उसकी कार्बन कॉपी बना सकते हैं एक तरीके से, और उसकी एक कार्बन कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ भी आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं जिनको आपको कार्बन कॉपी सेंड करनी है। नेक्स्ट इज बीसीसी। बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें सीसी तो दोनों में इन्वॉल्व है, कार्बन कॉपी तो दोनों का ही पार्ट है, पर इसमें है बी फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो क्या मतलब रहता है इसका आपका, इसका मतलब ये रहता है जब सीसी में आप एड्रेस लिखते हैं जिसको आपको मेल भेजना है तो उसे ये पता रहेगा कि ये मैसेज और कितने लोगों को भेजा गया है। ठीक है, लेकिन बीसीसी में आप ये हाइड करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आपने जो मैसेज भेजा है वो किसी और को भी पता चले, तो फिर आप बीसीसी के थ्रू भेजते हैं वहाँ पर। फॉर एग्जांपल सपोज़ मुझे ऐसा करना है कि मुझे डिफरेंट कैंडिडेट्स को कॉल करना है इंटरव्यू के लिए, और मैंने ये नहीं चाहता कि वो कैंडिडेट को आपस में पता चले कि ये मेल और कितने कैंडिडेट्स के पास गया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर मोर देन 100 कैंडिडेट्स हैं, सबको बीसीसी के थ्रू अगर हम भेजेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कितने और कैंडिडेट्स हैं। तो वहाँ फिर आप बीसीसी में टाइप करेंगे, लेकिन सीसी में क्या होगा, सीसी में पता चलेगा कि इसकी और किसी को कार्बन कॉपी सेंड की गई है। तो सीसी में इन्फॉर्मेशन का एड्रेस के बारे में पता रहता है, बीसीसी के बारे में पता नहीं रहता। आप हाइड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को तो बीसीसी के थ्रू कर सकते हैं। देखिए दोनों में ही एड्रेस टाइप किया जाएगा भेजने वाले का, लेकिन सीसी और बीसीसी में डिफरेंस ये रहता है कि सीसी में पता होता है और बीसीसी में पता नहीं होता कि आप ये मेल और कितने लोगों को सेंड किया गया। देन आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज देयर, तो जो भी मैसेज का टाइटल है वो आप टाइटल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उस टाइटल को लिखने के बाद, टाइटल से ये एडवांटेज रहता है कि सामने वाले को मेल मिलेगा किसी को तो उसे पता होगा ये मेल का पर्पस क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या हो सकता है या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेल करना है आप सभी को स्टूडेंट्स को, और मैंने टाइटल सब्जेक्ट के अंदर लिखा मैंने नोट्स ऑफ एफआईटी। ठीक है, एफआईटी नोट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन नोट्स, तो आप देखते समझ जाएंगे कि ये ईमेल आईडी मेरी है आपकी, और यहाँ अगर लिखा हुआ है आपका कि नोट्स एफआईटी या नोट्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप समझ जाएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स हैं, सर ने सेंड किए हैं इसमें। तो ये मेन पार्ट होता है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे तो ब्लैंक शो करेगा ये आपका। नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं अपना, जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, वो मैसेज लिख सकते हैं आप इसमें, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट अवेलेबल हो, आप विदाउट टेक्स्ट भी कोई फाइल सेंड कर सकते हैं। तो जनरली अगर कोई टेक्स्ट करना है, ईमेल करना है, कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन है, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम वो सेंड कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो एक तरीके से समझ लीजिए, एक तो एक डॉक्यूमेंट्स या आपका रिज्यूमे होगा, एक तो वो, और एक कवर लेटर होगा। तो जो कवर लेटर होगा आप उसका कंटेंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर, और जो आपका ईमेल है उसको जो आपका रिज्यूमे है उसको आप अपने ईमेल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है अटैचमेंट का, तो उस फाइल को आप अटैच कर सकते हैं। देखिए लिखा भी हुआ अटैचमेंट, तो यहाँ आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल का, तो आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और आप अगर गूगल ड्राइव के थ्रू करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, ये रिसाइकल बिन का ऑप्शन है डिलीट करने के लिए। तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यही आता है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। अगर ईमेल के बारे में लिखने को आता है तो ये डायग्राम आप सभी को बनाना होगा एटलीस्ट, और इसी तरीके से मेंशन भी करना होगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन तो देना ही होगा, लेकिन ये डायग्राम कंपलसरी है। जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे तब तक एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ टू में
आपको एड्रेस है जिसको आपको मेल सेंड करना है, उसका एड्रेस सीसी में भी हम सीसी में अगर हम एक से ज़्यादा लोगों का एड्रेस टाइप करते हैं तो वहाँ सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि ये मेल किस किस को और गया है, लेकिन बीसीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और वहाँ ये मेल और किन लोगों के लिए पास गया है ये इसके बारे में आइडिया नहीं होता। सब्जेक्ट के अंदर टाइटल लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर हम जनरली टेक्स्ट लिखते हैं उसके बारे में। अगर हमको कोई बताना है, कोई एप्लीकेशन है या कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर देंगे। और फाइल अटैच करनी है तो अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। लास्ट में जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम मेल सेंड कर सकते हैं। आपको मेल सेंड करना है तो आप मेल सेंड कर दीजिए, यहाँ से आप मेल सेंड हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। और सेंड मेल होने के बाद पहले आउटबॉक्स में शो होगा जब तक वो डिलीवर नहीं होगा, और डिलीवर हो जाने के बाद वो सेंट मेल में शो होगा। तो सेंट मेल में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका शो हो गया या नहीं हो गया। और अगर आप नहीं भेजना चाह रहे हैं, आपका मेल प्रिपेयर है, तो आप ड्राफ्ट के अंदर उसे सेव कर सकते हैं। और डिलीट कर दिया तो ट्रैश के अंदर आएगा। और डिफरेंट कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, तो उस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, वो स्पैम के अंदर शो होते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये टोटल ईमेल का स्ट्रक्चर था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस। तो पहला है टू, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस फील्ड कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, तो यहाँ जो भी जिसको भी आप मेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आएगा। नेक्स्ट इज सीसी, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और सीसी और बीसीसी में पिछली बार डिफरेंस पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ईमेल आपके सिलेबस में है तो ये पूछा जाने के चांसेस है कि सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंट होता है। CC stand for carbon copy. This contain the address of the recipient to whom you want to send a copy of an email message. तो आप जिसको अपने ईमेल मैसेज की कॉपी भेजना चाह रहे हैं उसका आप एड्रेस सीसी के अंदर लिखेंगे। एंड BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ब्लाइंड वर्ड इसीलिए ऐड हुआ है इसके साथ क्योंकि जो अदर रिसिपेंट है उसको पता ही नहीं चलेगा, वो ब्लाइंड रहेगा टोटली कि ये मैसेज और किसको भेजा गया है, ठीक है, इसकी कार्बन कॉपी और किसको भेजी गई है। So this field also contains the list of the recipients. BCC recipients can see the to and CC recipient to and CC addresses, but BCC recipients name is not visible to other. देखिए जब आप CC के थ्रू एड्रेस भेजेंगे तो CC में जिसका एड्रेस होगा वो टू वाले एड्रेसेस को भी देख सकता है किस किस को भेजा गया है, और CC वाले किस किस को कार्बन कॉपी भेजी गई ये भी देख सकता है। लेकिन जो BCC में है वो नहीं देख सकता, उसको पता ही नहीं चलेगा ये मैसेज और किस किस को भेजा गया है, इसकी कार्बन कॉपी किसको भेजी गई है, मैसेज किसको भेजा गया है, उसको पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। दिस फील्ड कंटेन द फील्ड ऑफ ए मैसेज, द टाइटल ऑफ ए मैसेज, तो मैसेज का टाइटल सब्जेक्ट के अंदर भेजा जाएगा। नेक्स्ट इज बॉडी, बॉडी इज इंक्लूड द टेक्स्ट ऑफ ईमेल मैसेजेस, तो ईमेल मैसेज का जो भी टेक्स्ट है आप बॉडी के थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज अटैचमेंट, आपको फाइल अटैच करनी है, यू कैन अटैच एनी डॉक्यूमेंट विद ईमेल मैसेजेस, कोई इमेज है, कोई फाइल है, कोई भी टेक्स्ट फाइल है, पीपीटी है, कुछ भी है, आपका ऑडियो फाइल भी है, उसको भी कनेक्ट करके भेज सकते हैं। लिमिट होती है फाइल की एक, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते आप। यू कैन अटैच एनी डॉक्यूमेंट विद ईमेल मैसेजेस। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग, यूजिंग द फॉर्मेटिंग टैब यू कैन फॉर्मेट द मैसेज। अगर आपको मैसेज को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेटिंग टैब के थ्रू मैसेज आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, अदर ऑप्शंस लाइक emoticons, bold, italic, hyperlink are used to make messages more interactive। तो इसके थ्रू हम मैसेज को अपना थोड़ा और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, इटैलिक में चेंज कर सकते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और इमोटिकॉन्स होते हैं तो उसके थ्रू भी हम मैसेज को और पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस क्या है ईमेल की। ईमेल स्पीड ऑफ द वर्कफ्लो प्रोसेस, डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड फॉर कमेंट्स, corrections can be made quickly, email saves paper printing cost, multiple copies of a message can be sent to a group of people, messages can be prepared in advance and saved until you are ready to send them, and files and images can be attached to an email। तो ये ईमेल के एडवांटेज आप सभी जानते होंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। पहला तो जो सबसे मेन एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू दो जो नॉर्मल हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, लेटर पोस्ट करते हैं, तो उसमें आपका पेपर और प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है ये सभी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें ईमेल के थ्रू ये सब नहीं होता, आप ईमेल सेंड करेंगे तो पेपर सेव होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट भी सेव होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो ये है, ठीक है। और आप किसी भी तरह की कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, जो इमेज भी होगी या इमेज फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है इसके साथ साथ, फोर्थ पॉइंट देखिए कि अगर आपको मैसेज सेंड नहीं करना है, आप मैसेज प्रिपेयर करके ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और उसको जब चाहे बाद में दोबारा सेंड कर सकते हैं।
और आप मैसेज की एक से ज़्यादा कॉपी बना सकते हैं और एक से ज़्यादा लोगों को एक बार में भेज सकते हैं। नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उसमें फिर आपको ऐसा नहीं होता, लेकिन ईमेल में आप एक ही मैसेज को अगर डिफरेंट पीपल्स को देखा शो देना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं कि एक उसके बारे में एक दूसरे से वो अनअवेयर हो किसी कॉल को सेंड किया गया है, तो मैंने अभी बताया बीसीसी ऑप्शन से वो भी पॉसिबल है। तो मल्टीपल कॉपी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन करना आसान होता है, कमेंट मेंशन करना आसान होता है, और बहुत कम टाइम के अंदर। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, विद इन ए सेकेंड आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर किसी भी पर्सन को मेल सेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ये वायरस कैरी करते हैं, इसका लिमिटेड साइज होता है, तो एक साइज से ज़्यादा आप मेल नहीं भेज सकते। नेक्स्ट है हास्टी मीडियम टू कन्वे एमेटिकॉन्स, तो एमेटिकॉन्स का भी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में क्या होते हैं। नेक्स्ट है नो गारंटी दैट द मेल विल बी रीड अनटिल द यूज़र लॉग्स ऑन ए चेक ईमेल, तो जब तक जो यूज़र है जब तक वो उसे लॉग नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, तब तक ये वो ईमेल को पढ़ नहीं पाएगा। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। अब सामने आपने मेल भेज दिया, लेकिन मेल जिसको मेल भेजा उसने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं किया है, तो मेल वो सेंड नहीं करेगा। तो इसमें इस बात का भी थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये वायरस कैरी करते हैं। नेक्स्ट इमोटिकॉन्स। So emoticons is a smileys are the element that help you to express your emotions or feelings in your email and text message। तो जब आप मेल भेजते हैं या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहते हैं एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो ये बेसिकली वो सिम्बल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं। इसको इमोशन और आइकन का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप अपना इमोशन सेंड कर सकते हैं। तो कौन कौन से इमोटिकॉन सिम्बल्स होते हैं ये देखिए, आपको स्माइल के लिए करना है तो ये भेजेंगे, सरप्राइज के लिए दे रखा है, ठीक है, तो ये शाउटिंग के लिए, क्राइंग के लिए। तो डिफरेंट इमोटिकॉन्स दे रखे हैं, डिफरेंट सिम्बल्स दे रखे हैं, जिससे आप सामने वाले को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये यूनिट दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट फॉर नेटवर्किंग। नाउ योर सिलेबस इज टोटली कंप्लीट as far as theory is concerned. So thanks for watching this video.